We'll start with the new topic, trigonometry. Since you have done this in grade 9th, I presume you have some knowledge of trigonometry, correct? Now, what you need to know is the basic knowledge of trigonometry. Since you have done this chapter in grade, you have done this chapter trigonometry in which grade? Grade 9th. You may be knowing the formulas, but still we'll revise once again all the formulas. Okay. Now formulas कैसे इसके अंदर आता है और ट्रिग्नोमेट्री का मेन काम क्या है, इस पे आज फोकस करते हैं. ट्रिगोनोमेट्री, मेट्री मीन्स मेजर, ओके, एंड ट्रिगो का मतलब ये होता है कि ट्राइंगल. सी ट्राई मीन्स व्हाट? ट्राइंगल सीखते हैं ना, ट्राइंगल कैसे होता है? ट्राइंगल ऐसे होता है. सो इट हैज टू डू लॉट विथ द ट्राई, दैट मीन्स 3, ओके, एंड मेट्री, सो मेजर. अब क्या मेजर करना है? क्या मेजर करना है यहाँ पे? वी हैव टू मेजर डिफरेंट साइज, डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट रेशियोज ऑफ साइड्स. ये सब मेजर करना हम ये टॉपिक के अंदर सीखेंगे. सो यहाँ से फॉर्मूलेज आना बहुत ज़रूरी है. फॉर्मूलेज आई मीन टू से थोड़ी ट्रिक्स बता देता हूँ, ट्रिक्स के हेल्प से तुमको फॉर्मूलेज याद भी रहेंगे. ओके, सो आई मीन इफ वी जस्ट डू द रिविजन, लेट्स जस्ट सी व्हाट वी हैव डन सो फार. What we have done so far is that we have assumed the triangle as a right angle triangle which is ABC, and we took one of the angle over here as theta. Since this is 90 and this is theta, this angle has to be 90 minus theta. Now how do we get this 90 minus theta? Because we know sum of all angles of a triangle is 180 degrees. So somehow you will get this angle A as 90 minus theta. Now what are the different ratios we have to find in this particular topic and why we require all that? So पहला जो trigonometric ratio हम सीखेंगे वो है sin theta. Theta is my angle and this is my trigonometric ratio. तो trigonometric ratio एंगल के साथ ही होता है. साइन और ये एंगल कभी भी अलग होता नहीं. इसको पढ़ते हैं साइन, सिन नहीं पढ़ना भाई, कोई गुनाह नहीं किया है. ओके, इट्स साइन. तो साइन थीटा. सो पहला फॉर्मूला आता है साइन थीटा. नाउ साइन थीटा सेज, सिंस यू हैव डन दिस इन ग्रेड 9th, आई एम जस्ट रिवाइजिंग. इट सेज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. So in this triangle, if I see the theta, my theta is this angle, and if I look at the opposite side for this, I'm going to get my opposite side for this theta angle as AB. So in this case, this opposite side will be AB, and what will be the hypotenuse? Right angle के सामने वाली जो साइड होती है वो hypotenuse है, so it is AC over here. So finally we got sin theta as AB upon AC. This ratio you need to know. This is only possible when you know this particular formula. Okay. Next trigonometric ratio is called as cos theta. Actually पूरा होता है वो cosine theta, but we call it as cos theta. क्या होता है? Cosine theta, but we write this as cos theta. Cos theta का क्या फॉर्मूला होता है? Adjacent side upon hypotenuse. Now what is the adjacent side for this theta? ये तो opposite side थी. ये थीटा के लिए adjacent side कौन सी होगी? BC. So we will take adjacent side as BC and hypotenuse will be AC. तो एक रेशियो sin theta, दूसरा cos theta भी मिल गया. Third ratio is my tan theta. Now tan theta is opposite side, that is opposite side upon adjacent side. So now in this case, if you see theta ये है तो opposite side क्या आ जाएगा? AB upon adjacent side क्या आ जाएगा? BC. So it's AB upon BC. ये इसका 10 का ये फॉर्मूला आ जाएगा. जनरल फॉर्मूला ये है, ये जनरलाइज्ड फॉर्मूलेज है. एज एंड व्हेन इसकी वैल्यूज चेंज होगी. सी ये ट्राइंगल ABC है, अगर ट्राइंगल PQR लिया तो यहाँ पर ये सब वैल्यूज तो चेंज होना ही होना है, बराबर है. अगर यहाँ थीटा है तो ये मेरा साइन थीटा है. इफ आई रिप्लेस दिस एंगल लेट्स से बाय अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा हो जाएगा. और फिर यहाँ पे सब एंगल्स कैसे चेंज हो जाएंगे? लाइक साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, बराबर है ना. ओके, तो
एंगल्स का टेंशन नहीं है यहाँ पे, एंगल्स कोई भी हो सकते हैं, कोई भी लेटर से भी एंगल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैंने अल्फा भी नहीं लिखा और मैंने लिख दिया सिर्फ साइन सी, तो साइन सी, सी इज माई एंगल। कौन से एंगल कह रहा है बात कर रहा है वो, ये सी वाले एंगल कह रहा है बात कर रहा है। सपोज साइन ए, सो कौन से एंगल कह रहा है बात कर रहा है, ए। अच्छा, साइन बी नहीं लेते हैं, दैट मीन्स राइट एंगल के लिए हमारे ये रेशियोज एप्लीकेबल नहीं होते हैं फॉर टाइम बिंग। सो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे एंगल जो थीटा है वो हमारा 90 कभी नहीं होता है। राइट एंगल में 90, यू हैव टू लीव 90 असाइड एंड टेक अनदर एंगल एज थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, जो भी है वो। और ये वाला जो थर्ड एंगल हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा या 90 माइनस बीटा या 90 माइनस गामा होगा। ठीक है, सो दीज आर द 3 रेशियोज। नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज 3 रेशियोज हमको और भी आगे के रेशियोज डिराइव करना है। ओके, सो इरेज कर देता हूँ और ये भी इरेज करता हूँ, काम करता हूँ, ये फिगर भी इरेज करता हूँ, नया बनाएंगे। ओके, सो लेट्स से नाउ आई टेक दिस एज राइट एंगल, दिस इज P, Q and R. So now let's say I want to write sine P. Sine P, I am talking about this angle, बराबर है। So sine हमारा क्या बोलता है, opposite side upon hypotenuse. I am writing in short form, in the exam you have to write full form. समझ में आ गया। साइन P के लिए ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, QR अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, देखो राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज PR। कॉस P, कॉस P, कॉस का क्या फॉर्मूला है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए एडजेसेंट क्या हो जाएगा, PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी PR। 10P, 10P क्या बताया था, 10P ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 10P का ऑपोजिट साइड क्या है, QR, एडजेसेंट सॉरी ऑपोजिट साइड क्या है, QR, एडजेसेंट क्या आएगा, PQ। अब हम इन 3 रिलेशन से वेल एक्वेंटेड है, बराबर है, आगे बढ़ना है। सो ये तो 3 कैरेक्टर्स है, इसके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी आते हैं, तो ये नाम तुमको याद रखना है। ठीक है, जैसे क्या, सेक P, कोसेक P एंड कॉट P। देखो P इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये एंगल है यहाँ पे। अगर एंगल अल्फा या बीटा होता तो मैंने क्या लिखा होता यहाँ पे, अल्फा या बीटा ही लिखा होता। ठीक है, नाउ अब ये जो 3 है, एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये पूरा एक टाइप का मूवी है। मूवी देखते हैं ना तुम लोग, बस वही काम करते रहते हो, पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो कभी। ट्रिग्नोमेट्री अगर एक मूवी है तो मेरे 3 मेन कैरेक्टर्स ये है, लीड, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ये होते हैं। अब हर एक लीड रोल और एक सपोर्टिंग रोल के बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन कैसा पकड़ने का देख लो। साइन कॉस टेन 3 मेजर, सेक कोसेक कॉट 3 सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, कैसे मिलेंगे, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के थर्ड लेटर्स पे ध्यान देने का। देखो SEC, COS, COT, जब इनके थर्ड लेटर्स पे ध्यान देंगे तो तुमको ऑटोमेटिकली रिलेशन हर एक के साथ यहाँ पे मिल जाएगा। देख लो कैसे, ये C है तो C कहाँ पर है स्टार्ट में, यहाँ cos पे, सो ये हो गया 1 अपॉन cos P, दैट मीन्स sec एंड cos आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब देख लो ये S है तो यहाँ पे S कहाँ पर है, साइन पे है, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन P। इसका मतलब C और S ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, दैट मीन्स कोसेक एंड साइन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे T 10 के साथ है तो 1 अपॉन 10P, सो कॉट एंड 10 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये रिलेशन समझ में आ गया। ओके, नाउ अगर ये सेक और कॉस रेसिप्रोकल एक दूसरे का, तो कॉस की वैल्यू क्या मिली थी हमको, PQ अपॉन PR। अब ये उल्टा हो जाएगा, PR अपॉन PQ, तो उल्टा जाएंगे तो ये वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। ये उल्टा हो रहा है ना पूरा। साइन P क्या मिला था, QR अपॉन PR, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल चेंज इनटू PR अपॉन QR। एंड लेट्स चेक दिस वैल्यू, 10P क्या मिला, QR अपॉन PQ, तो उल्टा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये PQ अपॉन QR। इन दिस वे आपके पास ये 6 रिलेशंस आ गए। ठीक है, नाउ
फॉर्मूलेस याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, ठीक है। इसके लिए तुमको एक छोटी सी स्टोरी याद रखना है, कहानी याद रखना है। कहानी कैसी है, देखो हमारी लाइफ में एज अ चाइल्ड तुम लोग स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जाएंगे, ट्यूशन जाते, बराबर है, ठीक है नहीं। सो आपकी लाइफ ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन, बराबर है। नाउ स्कूल के लिए जब आपके पेरेंट्स आपको उठाते हैं सुबह, गेट अप, यू हैव टू गो टू स्कूल, तो आपके मुंह से सबसे पहला अल्फाज निकलता है, ओ नो, नॉट द सेम बोरिंग डे, बोरिंग लाइफ। कॉलेज के लिए अगर जाने बोलेंगे तो बोलेंगे आहा, कॉलेज में तो एंजॉय करना है, बराबर है। अच्छा, ट्यूशन में जाना है तो ओए, वहाँ पे भी तो एंजॉय ही करना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, ओए, बराबर है। अब देख लो ये तीनों एक्सक्लेमेशंस को अगर तुम साथ में लेते हो तो ओ एच, ओह, स्कूल के लिए अगर यहाँ डिवाइड साइन डाल दिया तो ओ अपॉन एच, मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसके लिए, साइन के लिए, साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस, तो ए अपॉन एच, फिर से यहाँ पे डिवाइड साइन डाल दिया ए और एच के बीच में। अच्छा, टेन ओ ए, तो ओ और ए। अब देखो ये तीनों फॉर्मूले इससे मैच होते हैं, देख लो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 3 फॉर्मूले तो तुमको ऐसे ही मिलते हैं। अब बाकी के जो बचे हुए ये 3 है, राइट द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर्स, तो ये भी 3 मिल गए, तो टोटल 6 फॉर्मूले तुम्हारे पास ऐसे ही हो जाते हैं, बराबर है। नाउ 2 मोर फॉर्मूलेज विच हैज अ रिलेशन बिटवीन, ये सब तो रिलेशन समझ में आ गया अभी, ठीक है। सो नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, विच इज साइन स्क्वायर, लेट्स से यहीं पे लिखते हैं साइन स्क्वायर p प्लस कॉस स्क्वायर p इज इक्वल टू 1। ये थियरम भी है, प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, याद रखने का। दिस एंगल साइन स्क्वायर p प्लस कॉस स्क्वायर p इक्वल्स टू 1। देखो अभी यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 कैरेक्टर हो गए, 6 में से हमने कौन से 2 को यूज करके, ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले होते हैं, कौन से, ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले। अब स्क्वायर वाले फॉर्मूले में भी ये 6 के 6 कैरेक्टर्स पूरे आना चाहिए, ठीक है, जिसमें से हमारे 2 कैरेक्टर्स तो अभी स्क्वायर के फॉर्मूले में चले गए। कौन से 2 गए, साइन और कॉस, 2 चले गए बच, ठीक है। अब बचते हैं बाकी के 4, ठीक है। सो कंफ्यूजन नहीं करने देना, पहले वाला तो तुमको याद रखना ही है, दैट इज साइन स्क्वायर p प्लस कॉस स्क्वायर p विच इज इक्वल टू 1। अभी नेक्स्ट जो है वो फॉर्मूले के लिए तुमको मेरा नाम याद रखना पड़ेगा, शेख तनवीर। क्या याद रखने का, शेख तनवीर। अभी एस से क्या बच गया हमारे पास, देखो ये है, तो सेक स्क्वायर p और यहाँ पे क्या आएगा, 10 स्क्वायर p और दोनों के बीच में 1, लेकिन इन दोनों के साइन के बीच में माइनस आएगी, इतना आपको तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर वाला एक फॉर्मूला आता है जिसमें सिर्फ प्लस है, बाकी के, अभी देखो सेक और 10 भी हो गया। अब एक और स्क्वायर फॉर्मूला इन दोनों को मिलाकर है, अब देख लो, एक कोसेक है और एक कॉट है। अगर कोसेक और कॉट दोनों भाई भाई है तो इसमें से बड़ा भाई कौन सा, जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स है, किस में ज़्यादा लेटर्स है, कोसेक में ज़्यादा लेटर्स है, तो ये बड़ा भाई है। ये बड़ा भाई है तो ये दुनिया में पहले आया ना, इसको ऐसा लिखने का। फिर छोटा भाई आया बाद में दुनिया में, तो उसको कॉट स्क्वायर p लिखने का, और फिर से दोनों के झगड़े होते हैं इसलिए माइनस साइन डाल देने का। सिंपल लॉजिक है, फॉर्मूलेज याद रखने का तरीका यही है। एक कहानी बना दो अपनी, खुद के फॉर्मूलेज बन गए। एक तो ये शेख तनवीर माइनस साइन, बड़ा भाई छोटा भाई माइनस साइन स्क्वायर, ये याद रखना पड़ेगा आपको। साइन स्क्वायर p प्लस कॉस स्क्वायर p इक्वल्स टू 1। ओके, अब 2 और फॉर्मूलेज बच गए, वो बताता हूँ। एक ये है कि 10p इज इक्वल्स टू साइन p अपॉन कॉस p, ऐसा भी लिख सकते हैं। साइन अपॉन कॉस भी मेरा 10 होता है, और एक होता है कॉट p। कॉट p इसका उल्टा, क्योंकि अभी तो सीखे ना दोनों रेसिप्रोकल है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस p अपॉन साइन p, बराबर है। अब देख लो कितने फॉर्मूलेज हो गए, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 10 11, ये बेसिक फॉर्मूलेज है। इस चैप्टर को पूरा करने के लिए ये बेसिक फॉर्मूलेज आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो ये फॉर्मूलेज लिख लो एंड विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ओके, ऑलराइट,
So let's start with the exercise and the practice set which is 6.1. So practice set 6.1 सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर स्कूल में तुमको टीचर ये बोल दे क्या ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी डिफिकल्ट तो हंसना, पहले स्माइल देना छोटी सी, क्यों? ट्रिगो डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, जिसको सिखाने नहीं आएगा तो वो यही बोलेगा कि ट्रिगो डिफिकल्ट है, लेकिन मैं बोलूँगा ट्रिगो सिंपल है। मेहनत करोगे तो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, बहुत इजीली आ जाओगे, बहुत खुश होगे। देखना, ध्यान दो, ध्यान देखो, तुम लोग सीख जाएंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसका क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में? साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। देर आर 2 ways ऑफ सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। फर्स्ट, try to identify that this question is based on which concept. So यहाँ पे sin theta equals to 7/25 दिया है और बोला है find the value of cos theta and tan theta. So ये 2 values find करना है. There are 2 methods. I'm going to explain both the methods. आपको जो भी पसंद आए, जो अच्छा लगे करके आना पूरा अच्छे से। ओके, फर्स्ट मेथड इज बाय फॉर्मूला। सो मेरा फर्स्ट मेथड है फॉर्मूला मेथड। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है। हमको इस साइन थीटा विच इज माय गिवन वैल्यू, इस पे ध्यान देना है। साइन थीटा 7/25 ये दिया हुआ है। सो हमको एक ऐसा स्क्वायर का फॉर्मूला सोचना है जिसके अंदर ये साइन थीटा आता है और वो स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, बराबर है। सो कौन सा हम ऐसा फॉर्मूला, विच फॉर्मूला हैव वी लर्न which has square for sine? It's the first formula which is sin square theta plus cos square theta equals to 1. This is the first formula of square which we have learned. Now let's see which value we have. Substitute that value. Sin theta is 7/25. So this will be 7/25 the whole square plus cos square theta equals to 1. Only one unknown variable है, वो है cos theta. यही find करना है क्योंकि यही तो question है। और इसके हेल्प से फिर tan थीटा मिलेगा। 7 का स्क्वायर 49 विच यू ऑलरेडी नो, 25 का स्क्वायर विल बी 625 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर डालते रहिए, 49/625 इज इन डिवाइड, ये प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर दिस विल टर्न इनटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 49/625। नाउ इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे, 625 इंटू 625, देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 625 माइनस 49, आई थिंक दैट विल गिव यू 576/625। स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। सो देयरफॉर 576/625 इज इक्वल टू cos थीटा, बिकॉज ये स्क्वायर है, राइट में गया तो रूट हो गया। 576 के स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर माय सजेशन 30 नंबर्स तक उसके स्क्वायर्स आना चाहिए, जैसे 30 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, इतना तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना। सो स्क्वायर रूट ऑफ 576 will be 24, square root of 625 will be 25. This is equal to cos theta. ये मेरे को cos theta की वैल्यू मिल गई। Now I have cos theta, I have this value sin theta, मुझे चाहिए tan theta। ये फॉर्मूला आएगा अभी, tan theta equals to sin theta upon cos theta. So क्या हो जाएगा? Let me erase this part which we don't need it, so I am using this space. So therefore क्या फॉर्मूला है हमारा? tan theta equals to sin theta upon cos theta. Now what is the value of sin theta which they have given? 7/25, the whole upon cos theta कितना है हमारे पास जो आया अभी? 24/25, बराबर है। Now अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये डिनोमिनेटर का 25 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 7/24। दिस इज द वैल्यू ऑफ माई tan थीटा। फाइनल आंसर लिखना भूलना नहीं। देयरफॉर माई आंसर cos थीटा जो वैल्यू मिली है हमको, दैट इज 24/25 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 7/24। डू नॉट फॉरगेट टू राइट द फाइनल आंसर। दिस इज ऑल्सो, दिस कैरीज मार्क्स, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट,
लेट्स डू द सेम क्वेश्चन विथ द सेकेंड मेथड। सीख के रखो, ज़रूरत दोनों की पड़ सकती है। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25। ओके, नाउ इन दिस केस करना क्या है तुमको, लेट्स से मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है पहले तो, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर विच एवर एंगल्स यू वांट यू टेक इट, लाइक ABC ले लिया और थीटा यही लेंगे, या ये एंगल लेंगे 90 थीटा नहीं ले सकते। नाउ ये यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अगर मैं इसमें एक कॉमन मल्टीपल लेता हूँ, बिकॉज ये तो रेशियो है ना, साइन थीटा 7/25, तो ये एक रेशियो है। सो रेशियो के लिए कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। सो लेट कॉमन मल्टीपल बी सपोज k, मैं कॉमन मल्टीपल k ले लेता हूँ। अब देखो साइन थीटा साइन मतलब स्कूल में जाना है तो ओह मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ इसमें साइन थीटा ऑपोजिट साइड क्या है, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, AC, बराबर है। नाउ लेट्स मैच दिस एंड दिस। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 में लेफ्ट साइड पे साइन थीटा है, 2 में भी लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ साइन थीटा है, तो राइट हैंड साइड मैच हो गया। सो देयरफॉर AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू 7/25। देखो AB 7 नहीं है, AB की वैल्यू 7 नहीं है और AC की वैल्यू भी 25 नहीं है, ये रेशो है, रेशो। सो 7 नहीं लिख सकते, इसीलिए कॉमन मल्टीपल लिया। सो देयरफॉर AB क्या हो जाएगा 7K, मतलब एक कॉमन मल्टीपल, और AC क्या हो जाएगा 25K। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ये रेशो है। AB 7 नहीं है और AC 25 नहीं है, दे आर इन रेशियोज, इसीलिए कॉमन मल्टीपल लिया। सो AB 7K और AC क्या हो गया 25K। नाउ इन दिस वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो इफ आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ओवर हियर, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है ना, आता है ना पाइथागोरस थ्योरम, शॉक मत देना, फर्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्री का। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नो लेट्स लुक एट दिस AC स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो सॉरी हमारे पास एक एडजेसेंट साइड नहीं है, वो फाइंड करना पड़ेगा। सो देख लो क्या है, AC 25K है, तो ये हट गया, यहाँ पे आ गया 25K द होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB कितना है 7 है, तो 7K द होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर वैसे ही रहेगा। 25K का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25K विल बी 620, सॉरी यहाँ लिखता हूँ 625K माइनस, सॉरी इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो गया 49K, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे, K का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ 625K स्क्वायर, ये प्लस इक्वल टू के इधर आ गया, तो ये हो गया माइनस 49K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। 625 माइनस 49 विल बी 576K स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। स्क्वायर इधर आ गया तो बन गया रूट 576K इक्वल टू BC। इरेज करता हूँ, 576 इज 24, सॉरी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा K, ये हो गया BC। सो यहाँ से BC मिला। अब देखो BC मिल गया 24K, AC कितना है हमारे पास, AC देखो 25K और ये है 7K। जब ये तीन साइड्स मिल गए तो तुमको सारे रेशियोज इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे सारे रेशियोज मिल जाएंगे, बिकॉज साइन थीटा छोड़ के हमको फाइंड करना है कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला कॉलेज, आहा, तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए एडजेसेंट साइड हो गया BC अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी AC। सो देयरफॉर BC कितना है 24K अपॉन AC कितना है
25k, ये गया तो 24/25। देखो ये cos थीटा की वैल्यू मैच हुई कि नहीं पहले वाले से। ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू वो मेथड से आया था, ये मेथड से भी तुमको cos थीटा 24/25 ही आएगा। tan थीटा फाइंड करना है, सो tan थीटा कैसे आएगा? tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। जो मेथड उधर किए थे वैसे ही करना है। देख लो यहाँ पे sin थीटा कितना है, sin थीटा क्या है हमारे पास, अगर हम लिख रहे हैं इसको, देखो 7/25 चाहिए तो ऐसा भी जैसा पहले किए थे वैसा कर सकते हैं, या k लेके कीजिए। cos थीटा कितना मिला है 24/25, ये गया 7/24। सो मेरा tan थीटा की वैल्यू मिल गई 7/24। मेथड दोनों तुम्हारे सामने है, जो समझ में आएगा वो मेथड अप्लाई करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ द अनदर फॉर्मूला। लेट्स सी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं और तुम हिंट दो कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। देखो tan थीटा, इन क्वेश्चन नंबर 2 दे हैव गिवन tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 और फाइंड करना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड sec थीटा एंड cos थीटा। सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। tan थीटा दिया हुआ है, मेथड 1 मेथड 2 बोथ मेथड्स यू हैव। आई एम गोइंग टू ट्राई दिस विथ मेथड 1 बिकॉज दिस इज t फॉर तनवीर, फॉर्मूला तनवीर का sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मेरे नाम का फॉर्मूला याद रखने का। नाउ दिस विल बी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा, tan थीटा इज 3/4, सब्स्टिट्यूट कर दो, द होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 इक्वल टू 1। देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, माइनस इधर चले गया प्लस 9/16। देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एलसीएम ले लो, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 प्लस 9 25/16, स्क्वायर उधर जाएगा, sec थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25/16। देयरफॉर sec थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5/4। sec थीटा मिल गया, ये देखो मिल गया। और sec और cos के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। देख लो, इसका थर्ड लेटर चेक करने का C है तो ये इसका रेसिप्रोकल है। सो sec थीटा, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, सो sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। देयरफॉर चाहिए तो इसको ऐसा लिखो उल्टा पुल्टा, एक ही बात है। हमको क्या चाहिए अभी, cos थीटा, सो देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा क्या मिला 5/4। रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 4/5 हो जाएगा। सो देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू 4/5। सिंपल। यहाँ पे स्टार्ट के ऑल 4 क्वेश्चंस में यही लॉजिक यूज करना है। नाउ 2 क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड, दिस इज माय मेथड 1। लेट्स सी थर्ड और फोर्थ के लिए आई एम गिविंग यू हिंट, यू विल ट्राई, आई एम गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन इन माय नेक्स्ट लेक्चर। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ द ब्रीफ आइडिया। Alright, so I'll give you the idea for the remaining questions in my next lecture. If you like the lecture and you need any help, like, subscribe and there is some bell over there. उस पर टैप कर देना, नेक्स्ट लेक्चर के लिए नोटिफिकेशन मिलेगा। फ़ायदा हो रहा है तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू।